I welcome you all for the second semester progression, and now Thank you you, all sir. are in the you all are in the second semester. क्या रिजल्ट आ चुका है क्या फर्स्ट ईयर का? अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया होगा। अभी नहीं आया सर। आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। योर इवैल्यूएशन हैज बीन डन। आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यू सब्जेक्ट फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ना सब्जेक्ट नेम इज फाइनाइट एलिमेंट मेथड। Finite element method. So this is a method. This you can say this is a method of dividing a huge element where you are having certain area of element, and a certain length, certain area, certain volume, and a certain mass, certain weight. You are having certain things. So what you do, you divide this whole area into many parts. How many parts are there? बताइए on the screen. Count करिए कितने parts हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. और ये है 19, 20, 21, 22. And इधर भी है 23. So, am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. How many parts are there? 24. 24. Yes. This is also left. So total parts are 24. Very good. So if I am having certain information for this part, I am having information for this part, I am having information, some information. The information may be about the displacement. The information may be about the temperature. Information may be about the velocity. Any parameter. Information may be about acceleration. Information about the forces. Anything, any parameter. Okay, if I have certain information about this parameter, then I can add up by a certain logic to get that information for each and every point anywhere. So many points are there. So I can get the information for each and every point or each and every minute area or the minute volume. तो सीधा सीधा कंसेप्ट फाइनाइट एलिमेंट मेथड का यही है कि हम किसी सर्टेन थिंग को, मान लीजिए मैं लीनियर एलिमेंट ले लूं, that I am taking a spring. This is a spring. This is point number 1. That this is point number 2. And let there is force acting over here. One force here. So T is the tension in the force. T is the tension in the spring, not the force. Then tension in the spring. Okay. Now I have decided 2 points over here. Point 2 and point 1. There are other points also. Point 3 is there. Point 4 is there. Point 5 is there. So many points are there. So if I have information about point 1, let U1 I am having. So what is U1? U1 is the displacement of the spring at point 1. Displacement of the point 1. U1. Displacement of the point 1. Due to the force T. T is the tension in the spring.
So if u1 is the displacement from the point 1, you can say it is the displacement for point 1. Similarly, u2 is the displacement for point 2. ठीक है? थोड़ा कम दिख रहा है, नीचे कीजिए कैमरा। अच्छा अच्छा, कम दिख रहा है, एक सेकंड बताइएगा। नाउ अब दिख रहा है पूरा? ये सर अब ठीक है। अब बताइए, अब से अब तो शायद दिख रहा होगा ठीक से। यस सर। सो मेरा कहने का मतलब है, आई एम हैविंग ए स्प्रिंग इज अंडर टेंशन, द फोर्स इज T. So force at point P, I am writing F2x, the direction is x, oriental direction is x. So force at point 2 in the x direction is T. Force at point 1 in the x direction is how much? बताइए कितना होगा? Point 2 पे force F2x मैंने assume कर लिया, तो point 1 पे force क्या होगा? F1x. जैसे F2x की वैल्यू T है, तो F1x की वैल्यू क्या होगी? Anyone from the class? What will be the value of force at point 1? अगर आपको कि F2x की वैल्यू T है, तो F1x की वैल्यू कितनी होगी? -T, है ना? Because in positive x direction we are taking +T, then negative x direction will be considered as -T from magnitude and direction combination. ठीक है ना? So one force is +T, the other force is -T. So if the force in the spring is given by, what is the force in the spring? Force in the spring is given by F equal to Kx. आपको पता होगा ना? F equal to Kx या K delta पता होगा। Force in the spring is given by K delta. K is the stiffness of the spring. What is K? K is the stiffness of the spring. Stiffness is defined as force per unit deflection. So here मैं मान लीजिए, this is one spring, this is another spring, and this is four spring. That stiffness is K1, K2, and K3. What will be the final stiffness? कौन बताएगा? आप में से कोई भी? अंकुर चौहान बताएं। K1, K2, K3 सीरीज में लगे हुए हैं। What will be the final stiffness? ये फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन है ना। पहली स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए K1 फोर्स लगाना पड़ता है, दूसरी स्प्रिंग में K2 लगाना पड़ता है यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, तीसरी में K3 लगाना पड़ता है। तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज द फाइनल स्टिफनेस, दैट इज K। तो K कैसे निकालोगे सीरीज में? by value of equation 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने पहले? ये तो बहुत जगहों पे आया होगा। यस सर। है ना? तो जब सीरीज में स्प्रिंग्स होती हैं, then 1 by K is given by this value, और यदि ये पैरेलल में होती है then तब क्या होता है बताओ? यदि पैरेलल में होती हैं, let this is first spring K1, this is second spring K2, and this is third spring K3, है ना? सिंपली ऐड कर देते हैं। So K is given by K1 plus K2 plus K3। ये प्रूफ आता है आपको? वो प्रूफ कर सकता है इसको? प्रूफ है ना? नेक्स्ट क्लास में बताइएगा प्रूफ, है ना? आप थोड़ा सा देखिएगा, मिल जाएगा आराम से आपको, नहीं तो मैं करा दूंगा प्रूफ, है ना? आपको आना चाहिए। इफ द स्प्रिंग्स, देखो स्प्रिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनाइट एलिमेंट मेथड में, ये भी समझ लो, है ना? स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनाइट एलिमेंट मेथड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखना। मान लीजिए कि आपके पास ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये दिस इज फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, this is second floor, and this is third floor। दिख रहा है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब फाइनाइट
एलिमेंट इंजीनियर क्या करेगा, इस पूरी बिल्डिंग को अज्यूम कर लेगा तो ये बिल्डिंग एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, दूसरा फ्लोर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, फिर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, फिर एक स्प्रिंग की तरह। तो एक तरह से मैंने क्या किया, किसी भी चीज का एक स्प्रिंग मॉडल बना लिया। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, इलास्टिकनेस। तो हर स्टोरी का एक इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक वैल्यू है, स्टिफनेस है, ठीक है। तो we are considering this building as a combination of springs in series, है ना। sometimes it is in series, sometimes it is in parallel, or sometimes it is a complex model. So to understand the spring is very much important to understand the finite element method concepts, ठीक है। तो स्प्रिंग पर जरा बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उसका स्टिफनेस K है, तो उसका फोर्स क्या होता है, E डेल्टा। कॉमन कंसेप्ट की आज हम पढ़ा नहीं रहे आपको, है ना, जस्ट वैसे ही। सो F इक्वल टू K डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा हियर? डेल्टा इज अ डिफ्लेक्शन, डेल्टा इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस। व्हाट इज K? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। व्हाट इज F? फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, फोर्स अप्लाइड ऑन द। तो F इक्वल टू K डेल्टा होता है, आपको पता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम सीरीज में बात करते हैं, तो सीरीज में देखना, दिस इज फर्स्ट K1, दिस इज सेकंड K2, दिस इज थर्ड K3, ठीक है। अब यहां मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट द फोर्स इज F। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज F। स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 3। So in the FEM language, this is element number 1, this is element number 2, this is element number 3. So the total building is divided into 3 parts. Ground, first, secondary, margin, third नहीं है, मैंने theory लिया है, तो ground, first, second, है ना। So the total building is considered as a combination of 3 springs, 1, 2, 3. So there are 3 elements, 1, 2, 3. Now there is a force on the building, there is a force F, ठीक है। तो अब इस अब आप ये बता सकते हैं कि इस वाले फ्लोर पे कितना फोर्स है, इस फ्लोर पे कितना फोर्स है, इस फ्लोर पे कितना फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है? एनीवन? ये तो टोटल फोर्स F है, K1 F by K2 F by K3 पहली स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है? F by K1 F by K1। अच्छा, फोर्स F by K1 कैसे फोर्स हो सकता है? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, और F by K1 की यूनिट क्या होगी? देखो, F by K1 हो गया फोर्स की यूनिट न्यूटन, K1 की यूनिट न्यूटन पर मीटर, तो ये कुल मिला के मीटर आ गया, मीटर न्यूटन कैंसिल। तो F by K1 तो रॉन्ग आंसर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर कैसे आ सकती है? फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है ना, आप सभी जानते हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आंसर ये है कि यदि फोर्स F लग रहा है, तो इस स्प्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, इस स्प्रिंग पर कितना लग रहा है, इस स्प्रिंग पर कितना लग रहा है, ये बताना है। क्या F के पार्ट हो गए? जैसे मान लीजिए F की वैल्यू 1000 न्यूटन है सपोज, तो क्या 333 इस पे लगेगा, 333 इस पे लगेगा, 333 इस पे लगेगा? क्या ऐसा होता है? क्या फोर्स बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है? एनीवन आप में से बताइए, कोई? सागर शर्मा, थोड़े बहुत 11th-12th के कंसेप्ट। क्या सर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा सर, K1 पे K2 पे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा सागर शर्मा के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इस पे F by 3, इस पे F by 3, इस पे F by 3, ये कहना चाहते हो? हैं? नहीं होगा ऐसा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द फोर्स विल बी, हाँ बताओ, द फोर्स विल बी, एक सेकंड,
तो सागर शर्मा F by 3 force will not divide. Force will not divide. Force is ओके सर ये लाइन में कर रहा है ना, कैसे फोर्स डिवाइड हो सकता है? The force is F for the first building, F for the second, F for the third. Everywhere the force is F. This spring is under the force F. Also, this spring also same force is acting on all these springs if they are connected in series. ठीक है? So F1, F2, F3 must be equal to F. यदि इस स्प्रिंग का फोर्स F1 है, इसका F2 है, इसका F3 है, तो सीरीज के केस में वेरी मच इंपॉर्टेंट F1 equal to F2 equal to F3 equal to F. ध्यान रखना, बहुत कंसेप्चुअल चीज आज मतलब ये तो आपको पता होगी चीज है ना. तो सीरीज के केस में क्या रहता है? F1 equal to F2 equal to F3 equal to F. अब बताओ F1 को क्या लिख सकते हैं? K1 डेल्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर लिख सकते हैं. और F2 को K2 डेल्टा 2 और F3 को K3 डेल्टा 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? अब देखो, ये वाली स्प्रिंग डेल्टा 1 खिंच गई, ये स्प्रिंग डेल्टा 2 खिंच गई, ये स्प्रिंग डेल्टा 3 इसमें एक्सटेंशन हो गया. So what will the total extension? सागर शर्मा बताइए. ये डेल्टा 1 एक्सटेंड हो गई, डेल्टा 2 एक्सटेंड हो गई, डेल्टा 3 एक्सटेंड हो गई, ये 2 सेंटीमीटर खिंच गई, 1 सेंटीमीटर खिंच गई, 4 सेंटीमीटर खिंच गई, टोटल कितना खिंच गई? 2 + 1 + 4. ये तो कॉमन है ना. किसी चीज को मैंने खींचा, 3 स्प्रिंग है, पहली खींची 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, टोटल कितना खिंच गई बताओ? ऐड कर देंगे सर तीनों को. ऐड कर देंगे तो कुल मिला के मुझे क्या मिला? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3. ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है ना? डेल्टा इज द टोटल डिफ्लेक्शन एंड डेल्टा 1 इज द इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन. डेल्टा 1 इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन इन फर्स्ट स्प्रिंग, डेल्टा 2 इन सेकंड स्प्रिंग, डेल्टा 3 इन थर्ड स्प्रिंग, एंड डेल्टा इज द टोटल डिफ्लेक्शन. So total deflection is given by delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Now this delta can be written as F by K. This delta 1 can be written as F1 by K1. This delta 2 can be written as F2 by K2. And this is F3 by K3. F1, F2, F3 are equal. So it is F by K1, F by K2, and F by K3. And it is F by K. F cancel out. So finally I am having 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3. बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. हाँ, प्रूफ हो गया. तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी कंसेप्ट से निकलती है कि जब भी स्प्रिंग्स यदि सीरीज में होंगी तो उनका ऐसे ही निकलेगा 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3. ओके, चलिए अब एक चीज बताइए. Now the strings are connected in parallel. Strings in अब सीरीज की बात होगी. This is the first, this is the second, this is the third, K1, K2, K3. ठीक है? Now I am applying a force over here, F. I am applying a force F. F force here. तो अब सागर शर्मा बताइए, पहली स्प्रिंग में कितना फोर्स है, दूसरी में कितना है, तीसरी में कितना है? अंकुर चौहान, दोनों में से कोई भी बताइए. अंकुर चौहान है हमारे साथ? आई थिंक पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं है. कौशल यादव बताएं, रोहित भी बताएं, आकाश कटवानी, कोई भी बताइए. यदि इसमें टोटल फोर्स F है तो इसमें कितना फोर्स है, इसमें कितना फोर्स है, इसमें कितना फोर्स है? जैसे ये 1000 न्यूटन है तो इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है? ये 1000 ही रहेगा इसमें. या सागर सर इसमें तो डिवाइड हो जाना चाहिए. इसमें डिवाइड हो जाना चाहिए बिकॉज इट इज इन पैरेलल, है ना? गुड. सो ये F जो है इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, तो क्या इक्वली डिवाइड होगा? बताओ. इक्वली डिवाइड होना कोई जरूरी नहीं है. यस सर, वो तो डिपेंड करेगा स्टिफनेस पे.
डिपेंड करेगा स्टिफनेस पे। वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स F1 आ गया, यहाँ पे F2 आ गया, यहाँ पे F3 आ गया, ठीक है। बट द टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू F1 plus F2 plus F3। पैरेलल के लिए सिचुएशन बनेगी। पैरेलल कंडीशन में फोर्स को समेशन करते हैं तब टोटल फोर्स आता है, और सीरीज में जब डिफ्लेक्शन को टोटल करते हैं तब टोटल डिफ्लेक्शन आता है। अब देखो, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 1, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 3, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना? एनीवन? यहाँ टोटल डिफ्लेक्शन कितना आएगा? इक्वल आएगा सर। इक्वल आएगा, यस। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो टोटल डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे डेल्टा ही होगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3। So this is the condition for the parallel case. Now F can be written as A delta, F1 can be written as K1 delta 1, A2 delta 2, and A3 delta 3. Now delta 1, delta 2, delta 3 are equal, so they can be cancelled out. हो सकते हैं। तो फाइनली क्या बचा? यस। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था फिर पैरेलल केस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are equal, so they can be cancelled out. So finally we have A equal to K1 plus K2 plus K3. क्या प्रूफ? सागर शर्मा, प्रूफ हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब प्रूफ करने के बाद मेरे एक दो प्रश्नों का जवाब दीजिए। सोच के लेना जवाब है ना। एक स्प्रिंग है मेरे पास, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 5 सेंटीमीटर। इसकी स्टिफनेस K है यार, K की वैल्यू मैं बता देता हूं, 1000 है, न्यूटन पर मीटर। इसकी स्टिफनेस 1000 है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। तो ये एक स्प्रिंग 2 स्प्रिंगों में बदल गई। एक स्प्रिंग किसमें बदल गई? 2 स्प्रिंगों में बदल गई। स्प्रिंग नंबर 1 और स्प्रिंग नंबर 2 बदल गई। बिल्कुल बीच में से मैंने काटा है। तो एक पहली की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी की लेंथ भी 2.5 सेंटीमीटर। अब बताओ पहली की स्टिफनेस क्या रहेगी और दूसरी की क्या रहेगी? एनीवन आंसर दीजिए। आकाश कटवानी बताएं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं आपको? एक बार फिर से देखो। एक स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर लेंथ की या 5 सेंटीमीटर लेंथ की, उसको बीच में से काट दिया, 2 स्प्रिंगों में कन्वर्ट हो गई। पहले स्टिफनेस 1000 थी, तो क्या अब भी 1000 रहेगी या कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? ये पूछना चाहता हूं। डबल हो जाएगी, डबल सर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएंगे, है ना। वेरी गुड। तो प्रत्युष कुमार गर्ग है जॉइंट। अभी लेट ज्वाइन किया है क्या प्रत्युष? यस सर, लेट ज्वाइन किया है मैंने। कोई बात नहीं। पेपर कैसा हुआ था आपका? सर सही हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन छूट गया था। छूट गया था, है ना। बाकी यस तो सर। यस सर, बाकी सब क्या रहा था? जितना किया सब बढ़िया किया, बट सम पार्ट हैज बीन नॉट अटेम्प्टेड, है ना। फिर भी स्कोर है मोर देन 80%। काफी लोगों का स्कोर एक आध क्वेश्चन छूटा था मेरा। तो चलिए, आपने सबने बहुत अच्छी मेहनत की है। कॉपियां देख के लग रहा था कि आप लोगों ने काम किया है, पढ़ा है ना। सबकी कॉपियां देख के आई एम फीलिंग। अच्छा, अंकुर चौहान है क्या हमारे साथ क्लास में? अंकुर चौहान, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना।
आप इंडस्ट्री में है तो मेरे ख्याल से कम समय दे पाते हैं, अभी क्लास में नहीं है ना कर, तो ये कोई नहीं। तो स्टिफनेस डबल हो जाएगी आपने से कहा, तो डबल क्यों हो जाएगी, कारण बताओ। आंसर विथ रीजन। डबल क्यों हो जाएगी? हाँ, मटेरियल वही है और फोर्स हमारा इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना फोर्स वो सह सकता है, स्टिफनेस उसकी डबल हो जाएगी क्योंकि हमारी लेंथ उसकी हाफ हो रही है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा फोर्स इक्वल होना चाहिए जो वो सह सके। जैसे कि मान लो इस पर कितना फोर्स आ रहा था पहले, काटने से पहले कितना फोर्स आ रहा था हमें तो पता, 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन, ये कौन सा पता लगा आपको? सर 2.5 हो जाएगा उसका, सब मल्टीप्लाई कर दिया ना। काटने से पहले फोर्स की वैल्यू आपको कितनी बताना, 5000 न्यूटन, ये कैसे बताया, ये कहां से पता लगा? हमने तो नहीं दिया था क्वेश्चन, हमने तो सर मतलब हाँ सर मल्टीप्लाई किया है ये। मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, फोर्स फोर्स में ऐसा थोड़ी होता है कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो स्टिफनेस, वैसा तो कहीं भी नहीं। फोर्स का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा, डेल्टा डिफ्लेक्शन है, लेंथ नहीं। ओके डेल्टा डिफ्लेक्शन है, नॉट द लेंथ। लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है और फोर्स लगाने से मान लो इसमें 0.5 मिलीमीटर का या सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन है। पहले इसकी लेंथ 5 थी, डिफ्लेक्शन के बाद 5.5 हो गई, खिंच गई। जितना खिंचता है उसे डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो पहले से लेंथ है वो तो लेंथ है ही। तो फोर्स की वैल्यू 5000 नहीं मान सकते आप, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, फोर्स तो हमें नहीं पता कितना है, हमें तो बस ये पता है कि स्टिफनेस इतनी है। स्टिफनेस का मतलब है कि 1 मीटर की डिफ्लेक्शन करने के लिए, 1 मीटर का एक्सटेंशन करने के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स लेना पड़ेगा। बस ये इतनी बात पता लग रही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपने आंसर तो नहीं बताया है कि डबल हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट, बट डबल क्यों होगा ये जानना। इसकी लेंथ मैंने आपको दिया 5 सेंटीमीटर, बीच में से ब्रेक कर दिया, तो हमने इसकी दो पार्ट में कर दी है, ठीक है। तो इसकी स्टिफनेस डबल क्यों हुई, मान लो इसकी 1000 की हो जाए, आंसर सही है, बट डबल क्यों हुई? मैं बताऊं, डबल होने का रीजन है कि मान लीजिए इसके अंदर पहले तो कॉइल्स थी, कॉइल्स, कितनी कॉइल्स थी इसके अंदर, मान लीजिए n कॉइल्स थी, कितनी कॉइल्स थी, n। अब इसको बीच में से काटने के बाद इसमें कितनी कॉइल बची, n/2, और इसमें कितनी कॉइल बची, n/2। तो आपने बीच से काटा है ना, तो पहले एलिमेंट में भी कॉइल हो गई n/2, दूसरे में n/2 हो गई, और जब कॉइल आधी हो जाती है तो स्टिफनेस क्या हो जाती है बताओ, जब बढ़ कॉइल जाती है स्टिफनेस डबल हो जाती है ना। डबल। तो आपने स्प्रिंग के अंदर रिफ्लेक्शन होता है 1 dD2 है डिवाइडेड बाय dD4, ये डिफ्लेक्शन होता है स्प्रिंग के अंदर, आपने पढ़ा होगा डिजाइन वगैरह में कहीं पर। d फोर्स है, d जो है कॉइल डायमीटर है, d कॉइल डायमीटर, n निक्रोस कॉइल्स है, g मॉडुलस ऑफ वेरिएबिलिटी है, और स्मॉल d जो है वो वायर डायमीटर, ठीक है, स्प्रिंग का वायर डायमीटर। तो इस यहां पे डेल्टा निकलता है। अब ये देखो n आधा हो गया, n की जगह n/2 हो गया, बाकी पैरामीटर तो कांस्टेंट है। जब हमने इसको बीच में से काटा, d चेंज हुआ क्या, नो चेंज। स्मॉल d का चेंज हुआ, नो चेंज। कैपिटल G नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। n हाफ हो गया, n के हाफ होने से डेल्टा हाफ हो गया, और डेल्टा के हाफ होने से स्टिफनेस डबल हो गया। तो स्टिफनेस क्या होती है, d/डेल्टा। तो जैसे डेल्टा हाफ हुआ स्टिफनेस डबल हो गई, दिस इज द रीजन। कोई पूछे तो आप ऐसे ही बताना, बीच में कट करने से नंबर ऑफ द कॉइल्स विल बी हाफ, and when the number of the coils will be half, the deflection will be half, and when the deflection is half, then stiffness is doubled. I think clear हुआ।
सबको? यस सर। गुड गुड। अब देखिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, है? अब ये स्ट्रिंग थी हमारे पास, इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको बीच में से काटा था, अब हम इसको काट रहे हैं इस तरह से काट रहे हैं कि ये 1:4 में जा रही है। इसमें जा रही है 1:4 में काटा, और इसकी स्टिफनेस 1000 है, तो इसकी स्टिफनेस क्या है, इसकी स्टिफनेस क्या है बताओ? टेक इट एज असाइनमेंट है, कल करके भेज देना व्हाट्सएप में आप, है ना? दिस इज द असाइनमेंट, क्लियर है असाइनमेंट? इसमें तो 1 पहले काटा था 1:1 में, अब काटा है 1:4 में। 1:4 का मतलब समझ लो, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1:4 में काटा। तो अब इसकी थिकनेस क्या क्या हो जाएगी, ये पहले 1000 कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? थोड़ा गूगल में सर्च करिएगा, गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, है ना? कुछ लर्न करेंगे उसको फिर मुझे भेजना पड़ेगा, राइट? तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हम ज्यादातर अब फाइनाइट एलिमेंट मेथड में जब भी कोई सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूम करेंगे। जैसे डस्टर दिख रहा है आपको, ठीक है? इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है? तो दिस डस्टर इज बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि हर चीज स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, हर चीज। जब मैं इसको भी खींचूंगा तो ये क्या कर रही है, स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है। तो आई विल जब भी मॉडलिंग करूंगा तो मैं स्प्रिंग्स के फॉर्म में मॉडलिंग करता हूं, ज्यादातर लीनियर केसेस। ठीक है, डस्टर को मैं स्प्रिंग मान लूंगा, हाई स्टोर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को स्प्रिंग मान लूंगा, और भी बहुत सारी चीजों में स्प्रिंग के कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, कोई भी आपका मान लीजिए शाफ्ट है या आपके पास बीम है, मान लो बीम को 1 2 3 ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बीम को? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट एक स्प्रिंग है, दूसरा पार्ट एक स्प्रिंग है, तीसरा पार्ट एक स्प्रिंग है, चौथा पार्ट एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है कि पैरेलल है? बताओ, देखने से पता लग रहा है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। बीम में 4 पार्ट कर दिए, चारों को स्प्रिंग है। देखो ये पहला स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, सीरीज है। सीरीज में। तो अब आपको ऐसे सोचो, मतलब थोड़ा ऐसे सोचना है कि एवरीथिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना? बीम को सॉल्व करेंगे, शाफ्ट को सॉल्व करेंगे, हम बहुत सारी मॉडलिंग वगैरह करेंगे फाइनल एलिमेंट मेथड में। तो हम क्या करेंगे, किसी भी लीनियर चीज को एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना? मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो इस एलिमेंट को हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और एलिमेंट को हम सबके को फॉर्म देंगे 1 2 3। तो जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में एलिमेंट नंबर दें, है ना? किसी भी क्रम में नंबर दे सकते हैं हम अपनी सुविधा अनुसार, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, किसी भी क्रम में जनरली डिग्री देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एलिमेंट नंबर 1 का पहला नोड क्या है, A, दूसरा नोड 1। तो इसके एक हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। हमने लिखा एलिमेंट नंबर, पहला एलिमेंट क्या है 1। अब उसके नोड क्या है, A1, है ना? पहला नोड A, दूसरा 1। उसके बाद 1s2, फिर 2s3, 3s4, 4s5, 5s3, एलिमेंट नंबर 4 5 6। तो दिक्कत इसमें बता है नोड और एलिमेंट, है ना? एलिमेंट के 2 नोड होते हैं, एक इनिशियल नोड, एक लास्ट नोड, है ना? स्प्रिंग में भी हम क्या करते हैं, ये 2 नोड मान लेते हैं, पहला नोड है, दूसरा नोड, ठीक है? 2 नोड मान लेते हैं। अब यदि मेरे पास पहले नोड की इंफॉर्मेशन है, पहले नोड का मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डिस्प्लेसमेंट पता है या उसकी वेलोसिटी पता है उस पॉइंट की,
उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये तो मुझे पता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और ये थर्मल प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट का टेम्परेचर पता है, एनीथिंग है ना। देखो कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है एफईएम के थ्रू, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी सॉल्व होती है, थर्मल क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो थर्मल के भी करेंगे हम, स्ट्रक्चरल के भी करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला नोड इज हैविंग सर्टेन displacement. The last node is also having certain displacement. Can you find the displacement of the another node? Let one dash. 1 और 2 के बीच में कहीं कोई नोड होगा, कितने नोड होंगे 1 और 2 के बीच में, बताओ? How many nodes are there? Between 1 and 2, how many nodes are there? There are infinite number of nodes. 1 dash, 2 dash, है ना, 3 dash, 4 dash, 5 dash. So many points are there. So if I am having the information for 1, information for 2, then with the help of finite element method, I can got the information for each and every point in the element. ठीक है, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीस में बांट देना, जैसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट लेना। फाइनाइट एलिमेंट में अंदर में क्या होता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उस छोटे पार्ट की कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है, इसकी इंफॉर्मेशन पता होती है, इसकी इंफॉर्मेशन पता होती है, फिर उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मेथड डेवलप होती है, उसको हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू फिर हम किसी भी पॉइंट का एनीवेयर इन द एलिमेंट वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरीथिंग कैन बी एनालाइज्ड, है ना। वेरी गुड मेथड, नाउडेज यूज्ड इन द रिसर्च, है ना, वेरी मच यूज्ड इन द रिसर्च। तो आज की क्लास मतलब आज को ये बताने की सिलेबस शुरू हो गया, सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और आज तो बस जनरल डिस्कशन है। हमने समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। We have understood what is stiffness, what is the stiffness of the spring when they are connected in series, what is the stiffness of the spring when they are connected in parallel, है ना। Spring stiffness is defined as force per unit deflection. One more term is there, rigidity. So rigidity is nothing, rigidity is represented by rho and it is unlikely. Stiffness का उल्टा होती है, स्टिफनेस होती है फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और रिजिडिटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड। एक होता है फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन और वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, ठीक है। तो यूनिट एक न्यूटन फोर्स से कितना डिफ्लेक्शन होगा, एक न्यूटन फोर्स से कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द रिजिडिटी। वहां पे फोर्स की वैल्यू हमने यूनिट ले रखी है, और यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज स्टिफनेस। क्लियर हो गया सागर शर्मा? रिजिडिटी और स्टिफनेस में डिफरेंस? यस सर। हाँ, दोनों की यूनिट अपोजिट है ना, एक में डिफ्लेक्शन यूनिट है और एक में फोर्स यूनिट। एक फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन है, एक डिफ्लेक्शन पर यूनिट। तो दूसरा, हमने किसी भी प्रॉब्लम को वी कैन डिवाइड इनटू सर्टेन एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6। Each and every element is having certain nodes, primary nodes, first node, last node. If we are having the information for these nodes, so how many nodes are there in this problem? बताओ कितने nodes है total? How many nodes are there in this problem? सागर शर्मा, कितने nodes है total? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 nodes are there, and how many elements? कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है ना, 6 एलिमेंट है। अब मान लीजिए इस वाले नोड का डिस्प्लेसमेंट u1, इसका डिस्प्लेसमेंट u1, इसका डिस्प्लेसमेंट u2, और उसके आगे देखो u1, u1, u2, और इसका हो गया u3, इसका हो गया u4, इसका हो गया u5 और इसका हो गया u3। These are the displacements for different points, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 3 और 4 के बीच में कोई नोड है k, क्या है, k इज द नोड। तो आपको ये बताना है कि u की वैल्यू क्या होगी, अभी बता सकते हो क्या आप लोग? हम आपको 1 2 3 4 5 6 का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं,
अब आपको ये बताना है कि ए नोड की और कोई ले सकते हैं, पी नोड की, एल नोड की, एम नोड की, एन नोड की, बेसलाइन नोड है, ओ नोड। तो इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स है, यदि मैं उसके डिस्प्लेसमेंट बता सकूं, उनकी वेलोसिटी बता सकूं, उनका एक्सेलरेशन बता सकूं, उनका स्ट्रेस बता सकूं, उनकी स्ट्रेन बता सकूं, तो इसका मतलब मैंने पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड इज ए वेरी गुड मेथड which divide the total area or the total length or the total volume, है ना, अभी लेंथ से समझेंगे, is divide the total length of the problem into small elements, ठीक है। We are having the information for the first and last node for the element, we can summarize them and we can find the properties like displacement, temperature, velocity, acceleration, strain, stress, etc. for each and every input present in the problem. कुछ आइडिया लग गया एपीएम का? यस सर। इतना ही है एपीएम में, इसी चीज को हम करेंगे। पहले हम लीनियर प्रॉब्लम के लिए करेंगे, फिर हम उसको 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए करेंगे, फिर हम उसको 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहले लीनियर प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन करेंगे, जब लीनियर प्रॉब्लम समझ में आएगी तो 2 डायमेंशन समझ में आएगी, 2 डायमेंशन समझ में आएगी तो फिर 3 डायमेंशन, ठीक है। सो अब इसमें यहाँ तक कोई क्वेरी हो जाए आपकी तो प्लीज आस्क। समझिए मैंने कुछ सिखाया, जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास।